हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। इतने सुंदर समय के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक समय और हमें आराधना करने का दिया। आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और आज हम परमेश्वर के वचन के कलाम से भी सुनेंगे। और हम पास्टर जी का भी धन्यवाद करते हैं कि एक दिन हमें और दिया परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और भाई रविंद्र जी के साथ मिलकर प्रार्थना में आगे जाएं। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਨ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੀਵਤ ਖੁਦਾ, ਜੀਂਦੇ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀ ਜਾਏ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਭਜਨ ਗੀਤ ਜਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ कबूली गई। सारे बोलो आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। एक बार जोर से जिस स्थान पे आप बैठे हैं हालेलुया का नारा लगाए। हालेलुया हालेलुया। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदाया 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 तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा।
छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। समुंदरों पार जाए उतरा, सुबह दे पंखा नू फहना। समुद्रों पार जाए उतरा, सुबह दे पंखा नू फैला। समुद्रों पार जाए उतरा, सुबह दे पंखा नू फैला। ते उथे भी तेरा हथ मैनू यार अब राह दिखावेगा। ते उथे भी तेरा हथ मैनू यार अब राह दिखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। ताड़ी मारते होए। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुण छिपावेगा। जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुण छिपावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तदो चानण हो जावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तदो चानण हो जावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। यीशु दा खून शिफा दियां नदियां बहांदा ए। यीशु दा खून शिफा दियां नदियां बहांदा ए। बोलदे होए अपने मूहां नूं खोल दे। यीशु दा खून शिफा ताड़ी मारदे हो। दियां नदियां बहांदा ए। यीशु दा खून शिफा दियां नदियां बहांदा ए। कम नਵੇਂ अनहोणे ते अजीब हुंदे ने। कम नਵੇਂ अनहोणे ते
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਅਣਹੋਣੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਮੂਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਬੋਲੀਏ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦ ਜਲਾ ਦੇਵੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦ ਜਲਾ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦ ਜਲਾ ਦੇਵੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਛੂਕੇ ਪੱਲਾ ਉਹਦਾ ਰੋਗੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਅਣਹੋਣੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਮੂਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ 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 ਅਬਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਪਾਕ ਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ 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 ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ 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 ਨਾਲੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਾਇਓ ਚਰਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਏ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਅਣਹੋਣੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਅਣਹੋਣੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਅਣਹੋਣੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਅਣਹੋਣੇ ਤੇ ਅਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਮੂਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ
यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा ए यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा ए शिफा 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 अबदी शिफा 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 अबदी शिफा ताड़ी मारते हुए अपनी आत्मा दे विच परमेश्वर दी आराधना करो शिफा 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 अबदी शिफा 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 अबदी शिफा यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा ए यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा हालेलुया सारे जाने अपने हाथां नु चुक के बोलिए Yes, Jesus. यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा हालेलुया यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा कम नवें अन होने ते अजीब हुंदे ने कम नवें अन होने ते अजीब आत्मा दे विच गाना कम नवें अन होने ते अजीब हुंदे ने कम नवें अण होने ते अजीब हुंदे ने जद पाक रू मामूरी नाल आउंदा ए यीशु दा खून शिफा दियां नदियां वहांदा ए जोरदार तालियां दे नाल हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस इस सुंदर भजनों के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का अपने हाथों को उठाकर उस खुदावंद की ओर आसमान की ओर हिलाते हुए धन्यवाद करें हालेलुया खुदा इस संगीतों के लिए हालेलुया यीशु पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु पिता इन ज़बूरों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु पिता ये आपके वचन है ये कलाम है यीशु पिता हालेलुया खुदा हालेलुया यीशु पिता जो कोई इसको सुने खुदा वो आशीष प्राप्त करे खुदा आपकी स्वर्गीय आशीष उस तक पहुंचने पाए खुदावंद हालेलुया यीशु पिता आगे की मीटिंग को यीशु पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा भाई एल्बिन के साथ हम मिलकर आगे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं हालेलुया 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 आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें अपने सरों को झुकाएं हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक और बार इस लाइव मीटिंग के द्वारा आमीन हालेलुया प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु आराधना स्तुति आमीन महिमा करने के लिए आपने ये सौभाग्य हमारे जीवन में दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु जी हम एक बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर किसी आमीन एक घर में या किसी एक जगह में सीमित नहीं है प्रभु जी जहां पर भी हैं आमीन क्योंकि आपका वचन कहे जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक हो प्रभु जी वहां आप हैं तो हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जिस भी घर में जहां पर भी हम बैठे हैं प्रभु जी तेरे नाम से बैठे आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी आपकी खोज में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं आप हमारे बीच में हैं हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु जी शुरू से लेकर अभी तक आपने आशीष के इसलिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए अवसर दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं आगे की मीटिंग आगे के वचन आपके हाथों में समर्पित करते हैं आपके वचन से हमसे बात करना आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं आमीन हालेलुया आज का वचन हम प्रत्येक से बात करने पाए प्रभु जी आमीन हालेलुया आप सभी के हृदय और सभी के परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर हो हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का वचन हमारे जीवन को बदलने वाले हो जाए आमीन हालेलुया हमारे हृदयों को छूने वाला हो जाए हमारे प्रभु जी एक जीवन में शिफा लेकर आने वाला हो हमारे परिवार में शांति लेकर आने वाला एक वचन होने पाए प्रभु जी आज के इस मीटिंग में जो भी शामिल है प्रभु जी सबके ऊपर आपकी बरकत आमीन आप उंडेलने पाए प्रभु जी एक नए आत्मिक सामर्थ सभी के ऊपर उंडेलने पाए इस मीटिंग को आपने आशीष के इसलिए धन्यवाद जो भी शामिल है सभी को आशीष के इसलिए धन्यवाद आगे की सेवकाई आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया इसलिए धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं आमीन आइए हम इसी आत्मा के साथ बैठें इसी प्रार्थना के साथ बैठे रहें आगे हम परमेश्वर के दास से वचन सुनने जा रहे हैं परमेश्वर के दास का वेलकम करें जहाँ जहाँ स्थान में बैठे उस उदरी ताली के साथ हालेलुया सबको जय मसीह की एक बार फिर परमेश्वर खजूरी में प्रभु का वचन सुनने के लिए आया वो सब भाई बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ अलग अलग जगह में परमेश्वर का वचन ऑनलाइन के रूप सुनने वाला सबको आज एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ
खासों से हम मिलकर परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हमारा कोयर को परमेश्वर आज इस्तेमाल किया। खासों से हमारा ऑनलाइन मीटिंग में पहले बार हमारा भाई रविंद्र प्रार्थना आराधना में शामिल हुआ है। प्रभु का दास को भी अनुग्रह करें। खासों से एक बार फिर सबको परमेश्वर बरकत दे। सबको प्रभु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन से खास बात हम सुनने के लिए जा रहे हैं। पिछले समय प्रभु का हजूरी में हमारा उपवास प्रार्थना परमेश्वर चुना हुआ रास्ता कैसे हैं इसी विषय में हम सुन रहा था। आज हम परमेश्वर का वचन से एक बात मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। प्रभु का वचन से निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय इसका 26वां वचन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बताया हुआ हाल एक व्यवस्था परमेश्वर अपने लोगों को अपने जीवन में किस प्रकार काम करता है हमको पता चलेगा। सभी अपना बाइबल खोलकर पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आई एम द लॉर्ड योर हीलर। यहोवा राफा, चंगा करने वाला। हम परमेश्वर का वचन से आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। ईश्वरीय चंगाई, डिवाइन हीलिंग कैसे परमेश्वर हमको देता है, इस विषय के बारे में हम प्रभु की वाणी से हम सुनेंगे। आपको पता है ये दुनिया में इंसान का सबसे ज्यादा जरूरतों में सबसे आगे खड़े होने वाला जरूरत है चंगाई है, शारीरिक चंगाई। शारीरिक चंगाई के लिए आज लोग भाग दौड़ करता है। शारीरिक चंगाई के लिए सारे दुनिया में हमें अलग अलग प्रकार की डॉक्टर्स, अलग अलग प्रकार की हॉस्पिटल्स, अलग अलग रेंज का हॉस्पिटल आजकल बना रहा है, क्योंकि बीमारी बढ़ रहा है, बीमारी खत्म नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं तुझको चंगा करने वाला यहोवा हूं। कैसे परमेश्वर का चंगाई हमको मिलेगा? खासतौर से चंगाई अलग अलग तरीका से होता है। कुछ लोग चंगाई जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को चंगाई जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा समय लगेगा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे मिलता है। कुछ लोगों का चंगाई मिलता भी नहीं है। लेकिन इस विषय के बारे में हम प्रभु का वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। आज ईश्वरीय चंगाई का पहले पार्ट पुराना नियम से वो नया नियम के नया नियम से भी आपकी आगे रखने के लिए चाहता हूं। जरूर परमेश्वर का वचन बताता है ईश्वर हमको चंगा करने, जिन्होंने इंसान को सृष्टि किया वो परमेश्वर हमको चंगा करने वाला है। परमेश्वर का वचन इधर पढ़ने के समय मालूम होता है 15वां अध्याय पढ़ने के समय वहां पर परमेश्वर का लोग, पुराना नियम का इस्राएली लोग 400 से अधिक साल गुलाम में रहने के बाद मिस्र से, इजिप्ट से आजाद होकर वापस आने का समय ये लोग आगे जाने के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था। लेकिन ये दिक्कत यही था, आगे एक बहुत बड़ा लाल समुद्र, रेड सी एक जगह में था, साइडों में पहाड़, पीछे पुराना जो राजा, पुराना गुलाम करने वाला मालिक पीछे था। मालिक पकड़े तो उसको जरूर ये लोग वापस लेके जाएगा। दोबारा खतरनाक तरीका से ये लोग गुलामी होकर काम करना पड़ेगा। पिछले 400 साल से बढ़कर 470 साल से बढ़कर ज्यादा मुसीबत ये लोग सामने करना पड़ेगा। पीछे देखे तो बहुत बड़ा डर होता है, आगे जाए तो वहां पर भी बहुत बड़ा लाल समुद्र है। लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर इस्राएल लोगों का अवस्था को देखा। कुछ लोग बहुत प्रभु का दासों को, अपना पास्टर को देखकर कुटकुटाया, बुटबुड़ा कर कहा तो क्या तुमको मारने के लिए हम लेके आए हो? क्या मिस्र देश में हमको कब्रिस्तान नहीं था, फिर यहां पर हमको मारने के लिए लेके आए हो? वैसे अलग अलग प्रकार की बात लोग का मुंह से निकलने के समय परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कहा देखो तुम्हारा हाथ में लो लाठी है, तुम समुद्र को दिखाओ, मैं चमत्कार करने के लिए जा रहे। परमेश्वर के दास मूसा ने कहा आज तुम जो हाल मिस्र को देखा है, आज जो गुलामी
दुश्मनी को देखा है, आज तुम जो दुश्मन को देखा है, तुम आगे वो दुश्मन को देखेगा नहीं है। आज दुश्मन का अंत होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर वचन बता, प्रभु का दास परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार की लाठी उठाकर समुद्र को दिखाया, समुद्र दो भाग हो गया। बाइबल बताता है इस्राएल लोग सूखी भूमि में, समुद्र के बीच में से पानी दोनों साइड में खड़ा था, पानी कभी भी गिरकर नीचे गिरा नहीं है, कभी भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की बातों के अनुसार, परमेश्वर के लोग जाने के कारण, आगे प्रभु की आज्ञा पालन करने वाला लोग, प्रभु को भाई मानने वाला व्यक्ति लोग, परमेश्वर की बातों के अनुसार लाठी दिखाने के कारण, बाइबल बताता है रास्ता खुल गया। वो रास्ता से इस्राएल लोग सही सलामत दूसरी जगह में पहुंच गया। पीछे आने वाला दुश्मन भी बोला, देखो हम भी उनका पीछे करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वाणी में लिखा है, देख इस्राएल लोग आगे दूसरी जगह पार किया, दूसरे किनारे पे पहुंच गया। यहां पर विरोधी का नाव, विरोधी का सेना को दिक्कत हो गया है, उसका घोड़े को, उसके रथ को चलना मुश्किल हो गया। थोड़ी समय के बाद मूसा को परमेश्वर ने कहा, तुम लाठी वापस दिखाओ। बाइबल बताता है परमेश्वर के दास की बात, परमेश्वर के बातों के अनुसार लाठी वापस दिखाया, पानी लाल समुद्र का पानी बराबर हो गया। मिस्र जो दुष्ट लोग, फरोन का सारे सेना उसी पानी पीकर मर गया। एक दिन की बात, सुबह उठकर देखा वहां पर ये लोग रथ, घोड़ा, सेना सारे मर गया, सभी खत्म होकर पड़ा था। तब बाइबल बताता है परमेश्वर के लोग परमेश्वर का स्तुति करने लगा, परमेश्वर के जय जयकार करने लगा। यहोवा के लिए परमेश्वर के लोग मिलकर गीत गाकर परमेश्वर को नमन आराधना करने लगा। बाइबल बताता है 19वां वचन में लिखा है, मिरियम नामक मूसा का बहन, वो हालेलुया म्यूजिक बजाकर गीत गाते हुए हमें परमेश्वर की हजूरी में नाचकर हमें स्तुति आराधना किया। सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद किया। ये बोलने लगा, हमारा परमेश्वर दुष्ट के फरोन का सेना को, हमें उसके घोड़ों को, उसके सारे हमें दुश्मन के शक्तियों को समुद्र पर खत्म कर दिया है। उसकी करुणा सदा की है। समुद्र में का बीच में से इस्राएल लोग को रास्ता खोलकर बचाया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का स्तुति किया। परमेश्वर का चमत्कार देखने के दौरान ये लोग स्तुति और आनंद के साथ आमीन अपना सफर शुरू किया। थोड़ी समय के बाद 22वां वचन में, 15 अध्याय को 22वां वचन में लिखा है, थोड़ी समय के बाद तो 2-3 दिन आगे चले गया, ये लोग को प्यास बढ़ गया, क्योंकि धूप, जंगल में धूप था। जब ये लोग क्या किया, वहां पर जाकर मारा नामक जगह पर पहुंच गया। वहां पर ये लोग को पीने का पानी मिला, लेकिन ये पानी पीने के लिए योग्य नहीं था, खरा पानी था। मूसा के साथ और भी ये लोग अभी क्या किया है, कुटकुटाने लगा, मूसा का खिलाफ बोलने लगा। क्या है, क्या भाई, हमको इधर क्या करने के लेके आया, हमको सही पानी नहीं आ रहे। आपको पता 2 दिन की पहले लाल समुद्र के बीच में रास्ता खोलकर आगे लेके परमेश्वर को लेके आने के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु के दास को भूल गया। अभी बोल रहे हमको क्यों तंग करने के लिए आया, हमको पानी की जरूरत है। प्रभु के दास के खिलाफ, प्रभु के नाम के खिलाफ बोलने लगा। बाइबल बताता है तब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को अगुवाई किया। तुम क्या करना है, एक पत्थर उठाकर उसमें पानी पर डालना है, क्योंकि एक खरा पानी मीठा हो जाएगा। परमेश्वर का दास वैसे किया, खरा पानी मीठा हो गया, सभी लोग पिया। सभी लोग तृप्त होने का समय परमेश्वर ने मूसा से बताया, जी जनता को कहा, अभी तक तुम चंगाई अनुग्रह दान से पाया है, मुझसे तुम चंगाई पाया है, आनंद खाना पीना बहुत अच्छा तुम आसानी से पाने के कारण छोटी छोटी बातों को सहने के लिए तुमको सामर्थ्य नहीं है, छोटी छोटी बातों को आमीन सोचने के लिए हमको समय नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताता है, परमेश्वर अपना दास को बताया, अभी ये लोग आशीष पाने के लिए मेरे विधि को पालन करना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने बोला, अगर तुम पुराना समस्या तुम्हारा आने के लिए अब नहीं चाहता है तो ईश्वरीय चंगाई आपका जीवन में स्थिरता के साथ संपूर्ण चंगाई परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए चाहते हो तो ये विधि, ये बातों को तो मानना पड़ेगा। बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है उसका 15वां अध्याय उसका 26वां वचन में, एक बार वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन बताता है उसका 26वां, यदि तुम अपना परमेश्वर यहोवा की वचन तन
मन से सुने। हालेलुया। बाइबल बताता है यदि तुम परमेश्वर का वचन को तन मन से सुने, और जो उसकी बाइबल दृष्टि बताता में है ठीक है। चंगाई पाने का सबसे पहले व्यवस्था, परमेश्वर मूसा से कहा तुम परमेश्वर का लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनना है। बाइबल बताता रोमियो का पत्री उसका 10वां अध्याय में लिखा है परमेश्वर का चंगाई के लिए, परमेश्वर का चंगाई के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास कैसे आएगा? विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। पढ़ेंगे रोमियो का पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चित उद्धार पाएगा। 14-15 फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, आगे। और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। 17 अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल बताता प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। कैसे विश्वास हो जाएगा? बाइबल बताता है उसका 17 वचन में, हमें रोमियो का पत्र उसका 10वां अध्याय 17 वचन में लिखा है विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। हालेलुया। मसीह का वचन सुनने से आता है। इसका मतलब है बाइबल बताता तुम चंगा होने के लिए चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना होगा, तब आपका विश्वास बढ़ेगा, तब आपका शरीर में परमेश्वर चंगा करेगा, आपको पता चलेगा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताता है परमेश्वर के वचन में साफ बताता है विश्वास सुनने से आता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने से आता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के पास जो लोग आते थे, यीशु मसीह ये लोग का चेहरा देखकर नहीं बताया, दिल देखकर बताया तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तेरा विश्वास तुमको चंगा किया है। इस्राएल में वैसे विश्वास को मैंने देखा नहीं है, कुशल से जाओ तेरे विश्वास से तुम चंगा हो चुका है। यीशु मसीह विश्वास के साथ आया हुआ किसी व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर संपूर्ण रीति उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला है। प्रिय लोगों, विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला विश्वास परमेश्वर की अगर हम भरोसा करें तो परमेश्वर का लोगों को पता चलेगा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। दूसरी बात प्रभु का दास ने कहा, सबसे पहले यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसके दृष्टि में ठीक है वही करे। चंगाई के लिए दूसरी तरीका क्या है? परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक है वही करे। हेलो, इंसान अपना दृष्टि पर ठीक के लिए चल जाता है, अपने मनपसंद वालों के काम करता है, आपका मनपसंद बातों के अनुसार अपना इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है क्या है? तो अपना दृष्टि में नहीं है, परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक है वो ही करे। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? ठीक है। बाइबल बताता है परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। पहले तो सिलों का पत्री 4:3, लेवीय व्यवस्था 11 का हमें 43 और 45 में वचन में परमेश्वर का वचन बताता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या है? परमेश्वर का दृष्टि में ठीक बात क्या है? सबसे पहले जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बनना चाहिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर पवित्र है हम भी पवित्र बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अशुद्ध व्यक्ति, पापी व्यक्ति को चंगाई परमेश्वर नहीं करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में आकर अपने आप को पवित्र करता है वो व्यक्ति को परमेश्वर चंगा करने वाला है। दूसरी बात, यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 29वां वचन में बाइबल बताता है कैसे परमेश्वर का दृष्टि में ठीक बात क्या है। सबसे पहले मैंने बताया परमेश्वर का दृष्टि में ठीक बात, जैसे परमेश्वर पवित्र है
हम भी पवित्र होना है। दूसरी बात परमेश्वर का वचन बताता, यीशु ने कहा यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 29वां वचन 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। बाइबल बताता है परमेश्वर का ठीक बात क्या है, बात यही है, जिनको परमेश्वर ने भेजा है उन पर विश्वास करो। परमेश्वर यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजा है इंसान को बचाने के लिए, उस पर विश्वास करो। परमेश्वर अपना पुत्र को मरने के लिए दे दिया है, उस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह को इसी सूली पर मरने के लिए, लहू बहाने के लिए भेजा है, उस पर विश्वास करो। तुम विश्वास करे तो तुम चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर कैसे विश्वास कर, परमेश्वर के लोग कैसे आमीन चंगा होगा, परमेश्वर की नजर में ठीक बात क्या है। भजन संगीता 51 का 51 का उसका 16वां वचन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, हाँ। नहीं तो मैं दे देता। हाँ। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। आगे टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। बाइबल बताता परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा, कैसे परमेश्वर दृष्टि में ठीक बात किया है। सबसे पहले वचन बताता है परमेश्वर होम बलि, मेल बलि, बहुत बड़ा बकरे को बलि चढ़ाकर परमेश्वर का खुशी करने के लिए कोशिश करे तो परमेश्वर कभी भी आनंद नहीं होता है। आपकी आराधना, आपके विषयों को जवाब नहीं मिलता है। इसका मतलब है आपके पैसे से, आपके कमाई से, आपका धन दौलत से कभी भी परमेश्वर का चंगाई नहीं मिलेगा। बाइबल बताता है टूटा हुआ मन, दोबारा पढ़ो क्या लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का दृष्टि में ठीक बात क्या है। 3 बात बताया, एक जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र होना है। दूसरी क्या है, परमेश्वर जिनको भेजा है यीशु मसीह पर हम विश्वास करना है। तीसरी बात क्या है, टूटा हुआ मन के साथ, टूटा हुआ बलि के साथ, टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु की हजूरी में जो व्यक्ति आता है उनके ऊपर परमेश्वर चंगाई का शक्ति रिलीज करता है। हालेलुया। तीसरी बात चंगाई होने का तरीका है, उसका हमें निर्गमन 15वां अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ। परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाओ। खासतौर से परमेश्वर पुराना नियम में हमें 10 आज्ञा दिया था और वो बहुत विधियां दिया था। प्रेज द लॉर्ड। 10 आज्ञा दिया था, मूर्ति पूजा से लेकर लालच तक। बाइबल बताता है वही बातों को क्या करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को कान लगाना। परमेश्वर की बातों को कान लगाकर उसी में चलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा। पर यीशु मसीह ने कहा नया नियम में, यदि कोई उद्धार पाने के लिए चाहता है तो उद्धार पाने के लिए एक ही व्यवस्था है, अपना जीवन परमेश्वर की आगे समर्पण करना है। जो व्यक्ति उसको परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको भेजने पर विश्वास करता है, जिन्होंने उसको कबूल करता है, उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। परमेश्वर का व्यवस्था है पूरा नया नियम में, जैसे परमेश्वर के लोग इस दुनिया में परमेश्वर ने बुलाकर रखा है, परमेश्वर का तन मन से उसकी आराधना करना, उसकी सेवा करना है, परमेश्वर का प्रेम करना है। दूसरी है अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। बाइबल बताता प्रभु यीशु मसीह और भी आज्ञा दिया था। यीशु मसीह आखिरी आज्ञा यही था, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, उसका उद्धार हो जाएगा। उस जो व्यक्ति विश्वास ना करेगा दोषी ठहरा जाएगा। मरकुस 16 का 16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसका मतलब है परमेश्वर का व्यवस्था को, उसकी हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को हम पालन करने वाला व्यक्ति है तो मेरा परमेश्वर आपका चंगा करने के लिए तैयार है। इसलिए बाइबल बताता है उसकी दृष्टि में उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को हम कान लगाना, तब हम परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई की शक्ति रिलीज करेंगे। हालेलुया। चौथा बात प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा उसकी सब विधियों को क्या करना है, कान विधियों को माने। आज्ञाओं को कान लगाना, विधियों को मानना। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति को
परमेश्वर ने डिसिप्लिन दिया है। इसीलिए बाइबल बताता हूं मसीह का चेला है, मसीह का चेला, डिसिपलशिप हर एक व्यक्ति का जरूरत है। अनुशासन प्रभु ने दिया है, कलीसिया को परमेश्वर ने अनुशासन दिया। यशायाह 5 अध्याय में लिखा है, कलीसिया को एक अंगूर की बागी के साथ हमें बताया है। वो अंगूर की वाटिका किस प्रकार एक मालिक तैयारी करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का अपना कलीसिया को अपना नियम के अनुसार, अपना विधियों के अनुसार परमेश्वर कलीसिया को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को तैयार करके रखा है, उसको बाउंड्री वॉल है, उसको संभालने के लिए प्रभु का दास को रखा है। इसके सारे अशुद्धता को हटाकर अच्छा फल के लिए इंतजार करता है। उसी प्रकार मसीह कलीसिया का हर एक विश्वासी अनुशासन के साथ चलना होगा। अपना मन मर्जी के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए बाइबल बताता है उसके विधियों को मानना है। परमेश्वर का विधि क्या है? पाप से दूर रखना, अशुद्धता से दूर रखना, अंधविश्वास से दूर रखना, दुनिया का मलिनता से दूर रखना, अन्य आराधना से दूर रखना। जैसे परमेश्वर पवित्र है, अपने आप को पवित्र संभालना है। बीड़ी, नशा, तंबाकू, अशुद्धता में हम कभी भी जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए बाइबल बताता है उसकी सब विधियों को मानो। तब परमेश्वर बताता है जिस लोगों को मैंने मिस्र पर भेजा उनमें एक भी तुझ पर ना भेजेगा। हालेलुया। 4 बात परमेश्वर ने बताया कैसे तुम चंगा होगा। सबसे पहला वचन बताता है यदि तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसके दृष्टि पर जो ठीक है वो ही हमें उसकी आज्ञा पर कान लगाओ, उसका मन में जो ठीक बात हो, उसको दृष्टि में जो ठीक बात करना है और उसकी सब विधियों को मानना है, तो जिस रोग मिस्र में तुम्हारा दुश्मन के ऊपर जो पीड़े आया, श्राप आया, महामारी आया, वो महामारी तुझ पर नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु का दास मूसा के द्वारा जो वचन हमें फिरौन के सामने भेजा, बंदा माना नहीं है। बार बार उसका दिल कठोर हो गया, परमेश्वर के दास को बेइज्जती किया, परमेश्वर के नाम को बेइज्जती किया। बाइबल बताता है प्रभु का दास को वार्निंग दिया था, आगे से तेरा शक्ल में देखे तो मैं तुझको मार डालूंगा। वैसे लास्ट वार्निंग दिया। परमेश्वर पहला टन को खत्म करके अपना लोग छुड़ाकर मिस्र में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन इस्राएल लोग सही सलामत अपना देश से भाग आया, गुलामी से भाग आया। पर बाइबल बताता है अगर तुम परमेश्वर का बात माने तो तुम्हारा दुश्मन पर आया हुआ विपत्ति तुझ पर नहीं आएगा। नहीं है तो तुम्हारा परंपरागत बीमारी, पुराना पाप, पुराना नुकसान, पुराना गुलामी, कमाने के बाद पैसा नहीं मिलता है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, पाप का बीमारी तुम्हारी जिंदगी को खत्म करेगा। इसलिए बाइबल बताता है मैं तुझे चंगा करने के लिए चाहता है तो, मिस्र का गुलामी बीमारी से तुम बचने के लिए चाहता है तो तुम क्या करना है? ये परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना होगा। परमेश्वर वचन के अनुसार चले तो कोई भी मिस्र का बीमारी तुझ पर नहीं आएगा। हालेलुया। बाइबल बताता है लास्ट वचन में लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। प्यारे लोगों, यहोवा राफा, चंगा करने वाला एक परमेश्वर को हम आराधना करता है। इस दुनिया का कौन सा डॉक्टर बड़ा है? उसको चलाने वाला व्यक्ति है परमेश्वर। वो वचन में आई एम द लॉर्ड यूर हीलर। यहोवा राफा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ईश्वर के चंगाई हमेशा के लिए स्थिर होता है। मनुष्य का चंगाई थोड़ी समय का इमोशन के द्वारा मिलने वाला चंगाई थोड़ी समय के बाद खत्म हो जाता है। जो ईश्वरी चंगाई परमेश्वर देता है ये हमेशा स्थिर होता है। विश्वास करने वाले लोग छाती के ऊपर हाथ रख के बोलना है मैं विश्वास करता हूं, यस ईश्वरी चंगाई हमेशा स्थिर होता है। डॉक्टर बोलेगा ये दुनिया का हमें डॉक्टर्स लोग ये बात बताता है बीमारी के कारण शारीरिक परेशानी नहीं तो मानसिक परेशानी होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है बीमारी के कारण, पीड़ा के कारण 2 कारण होता है। मृत्यु के कारण भी इनके साथ अटैच होता है
आमेन, पाप और शैतान के द्वारा बीमारी, आमेन, पीड़ा और श्राप, मृत्यु आ गया है। हालेलुया। बाइबल बताता है कैसे पाप और शैतान के द्वारा क्या आ गया, बीमारी और मृत्यु आ गया है। इसके साथ साथ क्या है, श्राप भी है। हालेलुया। बाइबल बताता है बीमारी और श्राप का जड़, मृत्यु का जड़, बीमारी का जड़ पाप और शैतान है। हालेलुया। पाप दो प्रकार का होता है, एक आत्मिक पाप, दूसरी शारीरिक हमें पाप, शरीर से करने वाला पाप। बीमारी दो प्रकार होता है, एक आत्मिक बीमारी, दूसरी शारीरिक बीमारी। ये दोनों को इलाज परमेश्वर करने वाला है। इसलिए बाइबल कहा मैं तेरा परमेश्वर तेरा चंगा करने वाला है। इसका मतलब अंदरूनी बीमारी चंगा करने के लिए सामर्थ्य। अंदरूनी बीमारी क्या होता है, पाप का शक्ति होता है। पाप का शक्ति कैसे चल जाएगा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय, यीशु मसीह को स्वीकार करने के समय, यीशु मसीह आने के समय हमारा शरीर के अंदर से पाप के जड़ खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन शारीरिक बीमारी कैसे होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करते उसके चंगाई की शक्ति को हम स्वीकार करने से हमारा शरीर का बीमारी को चंगा करता है। हालेलुया। पाप का शक्ति हमेशा क्या करता है, दुष्टात्मा आने के लिए रास्ता बना कर देता है। दुष्टात्मा आने के लिए, बीमारी आने के लिए रास्ता बना कर देता है। परमेश्वर को वाणी ने साफ बताता है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से तीन काम होता है। यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा करने के समय यीशु मसीह तीन काम किया था। सबसे पहले यीशु मसीह प्रचार किया है। क्या प्रचार किया है, परमेश्वर के राज्य निकट है, मन फिराओ। परमेश्वर के राज्य निकट है, मन फिराओ। क्योंकि अंदर की पाप का क्षमा के लिए मन बदलना होगा, मन फिराना होगा। हालेलुया। मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने के समय हमारा पाप का जो जड़, पाप का जहर हम क्या करता है, उल्टी करता है, फेंकता है, निकालता है। हालेलुया। बाइबल बताता है यीशु मसीह को दिल से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करो, परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा किया है। परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा किया है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसका उद्धार हो जाएगा। जब उद्धार होने के समय यीशु मसीह उसका जीवन में जो पापी व्यक्ति के ऊपर पैदा होगा, परमेश्वर वाणी में लिखा है वही व्यक्ति अपना पाप क्षमा पाने के समय उसका मानसिक बीमारी से, आत्मिक रोग से आपको चंगाई मिल जाता है। आत्मा अंदर पड़ा हुआ पाप परमेश्वर क्षमा करने के समय परमेश्वर की चंगाई का शक्ति आपके अंदर प्रकट होगा। इसलिए इसके बाद प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह को शक्ति और अधिकार था दुष्टात्मा को निकालना और बीमारियों को चंगा करना। वो पीड़ा से और बीमारी से शिफा देने के लिए यीशु मसीह को अधिकार था। इसलिए प्रिय लोगों, पाप, रोग, हमें शैतान का शक्ति हमारा जिंदगी को, हमारा शरीर को सत्यानाश करने का समय हम परमेश्वर का ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा वचन को पकड़ना चाहिए। परमेश्वर यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। पाप से गुड बाय करे तो शैतान का रास्ता बंद हो जाता है। पाप को छोड़कर पाप का रास्ता को ताला लगाने का समय वो शैतान भागकर चल जाता है। चंगाई ऑटोमेटिकली आपका शरीर में प्रकट होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन पुराना नियम में लिखा है मैं अपना वचन को भेजकर तुझको चंगा करूंगा। हालेलुया। तुझको मैं चंगा करूंगा, अपना वचन को भेजकर मैं तुझको चंगा करूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के योजना का पूरा करने के लिए हमारा जीवन में कुछ बात समझना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर का वायदा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ये वचन मैंने बताया हमें निर्गमन 15 का 26वां वचन में परमेश्वर चंगा करने वाला है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में प्रचारक चंगाई दोनों बराबर लेके गया।
केवल प्रचार करके छोड़कर नहीं चले गया, प्रचार करने के साथ साथ लोगों को चंगाई भी, छुटकारा करके परमेश्वर के राज्य का प्रचार करके अलग अलग जगह में, पहाड़ों में, तराई में, आमीन, अलग अलग जगह में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को इस्तेमाल किया है। इस पर विश्वास करने वाला 12 चेलों को पर प्रभु यीशु मसीह अधिकार दिया, 70 चेलों को पर प्रभु ने अधिकार दिया, उस पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया है चंगा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र का रूप, यीशु मसीह दुनिया में सेवा करने का समय प्रकृतियों के ऊपर प्रभु अधिकार इस्तेमाल किया, आंधी तूफान को शांत किया, पानी के ऊपर चलकर स्थापित किया है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। साथ साथ प्रभु यीशु मसीह अपना साथ आया हुआ बीमारियों को, उसके पास आया हुआ बीमारियों को, दुष्ट आत्मा के लोगों को, मुर्दे व्यक्ति को आमीन मैं चंगा करके, दुष्ट आत्मा से शिफा देकर, जिंदा करकर, गोड़ियों को शुद्ध करके स्थापित किया है। परमेश्वर को अधिकार है ये सब कुछ करने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, बाइबल बताता है यीशु मसीह का पवित्र कुर्बानी, यीशु मसीह का पवित्र कुर्बानी हमारा शरीर, प्राण, आत्मा का छुटकारा के लिए ही यीशु मसीह अपना जान दिया, पवित्र कुर्बान हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमारा शरीर, प्राण और आत्मा का संपूर्ण छुटकारे के लिए परिपूर्ण, हालेलुया, परिपूर्ण बलि था। संपूर्ण रीति प्रभु यीशु मसीह इंसान की कीमत चुकाया, इसके लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए परमेश्वर अपना पुत्र को मरने के लिए भेजा है। इंसान को मारने वाला 2 बड़ा विलन होता है, तगड़ा दुश्मन है। बाइबल बताता है रोग और पाप। रोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू, आमीन, पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू दिया, अपना खून बहाया। लेकिन अपना खून बहाकर, अपना जान देकर पाप से इंसान का छुड़ाने के लिए उद्धार का दरवाजा खोला। लेकिन बीमारी से चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर दे दिया है। बाइबल बताता है यशायाह 53 वचन में, अध्याय में लिखा है उसके मार खाने से तुम चंगा हो गया है, उसकी मार खाने से चंगा हो गया है। 103 भजन संगीता उसका 3री वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, उसके उपकारों को मत भूलना है, वो ही तेरी अधर्मों को क्षमा करता है, वो ही तेरे रोगों को चंगा करता है, वो ही तुझको तेरा प्राण को नाश होने से बचाता है। आज प्रिय लोगों, चंगाई के लिए इतना बड़ा रास्ता ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं दिया, कोई भी हॉस्पिटल में वैसा सुविधा नहीं है। हालेलुया। ईश्वरीय चंगाई संपूर्ण होता है। संपूर्ण चंगाई मिलने वाला व्यक्ति ईश्वर से उसके वचन के अनुसार चंगा पाने वाला कोई भी व्यक्ति दोबारा पुराना गुलाम में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए 4 बात मैं दोबारा बोलने के लिए चाहता हूं। निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसका 26वां वचन एक बार फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर, यदि तुम अपना परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग में मैंने मिस्र पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। सभी अपना आंख बंद कीजिए। आज परमेश्वर हजूरी में वो चंगाई को हम प्राप्त करेंगे। हम प्रभु हजूरी में बैठने वाला व्यक्ति 2 प्रकार की चंगाई पाना जरूरी है। एक आत्मा की चंगाई, दूसरी आपका शारीरिक चंगाई। ये दोनों देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। आप तैयार हो? अपना शरीर, अपना जीवन, अपना परिवार यीशु मसीह के लिए दे सकते हो? बाइबल बताता है यीशु मसीह पर तुम विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार हो जाएगा। तेरे अंदर तेरा आदमी का पाप, अंदरूनी गलती प्रभु क्षमा करने वाला है। इस शरीर में रहने के समय जो पाप के द्वारा बीमारी आया है, यीशु मसीह का कोड़े खाने से वो आपको चंगा करने वाला है। मिलकर
थोड़ी सी में परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे। जहाँ पर आप लोग बैठा है वो हम ताली बजाकर प्रभु का स्तुति आराधना करने के समय कितना तगड़ा बीमारी हो, आप परमेश्वर की पवित्र नाम से आप चंगा हो जाएंगे। प्रभु का हजूरी में उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, उसका विधियों को मानने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करके चंगाई पाकर प्रभु के रास्ता पर चलने के लिए हम प्रभु के आगे समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे सभी मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें मुंह खोलकर। ये वचन की अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नो जी तू जाने। अपने अखां नूं बंद करके सब मुक जाने, उसकी आराधना ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। रोग पुराणे, यीशु मसीह नो जे तू जाने, सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नो जे तू जाने। जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनू बोल सुना दे। जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनू बोल सुना दे। हर गुनाह दे राज दिल दे उसनू बोल सुना दे। हर गुनाह दे राज दिल दे उसनू बोल सुना दे। सब तो आला नाम सीधा, सब तो आला नाम सीधा। जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नो जे तू जाने। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नो जे तू जाने। हर वेले दा रोग का तो जिंद अपनी नू लाया। हर वेले दा रोग का तो जिंद अपनी नू लाया। दर दर जाके धक्के खाते पल्ले कुछ ना पाया। दर दर जाके धक्के खाते पल्ले कुछ ना पाया। सब तो आला नाम सीधा, सब तो आला नाम सीधा। जे तू लवे ते आ, जे तू लवे ते आ, जे तू लवे ते आ, जे तू लवे ते आ। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह नो जे तू जाने।
यीशु मसीह नो ये तू जाने तू की जाने शान ओदीनू तन तन ओ अखवावे तू की जाने शान ओदीनू तन तन ओ अखवावे अपने वचन नू काली के तेरी रूह दी प्यास बुझावे अपने वचन नू काली के तेरी रूह दी प्यास बुझावे यीशु दरिया के सिर नू झुका के 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 जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने ताड़ी मारते हुए यीशु मसीह नो जे तू जाने अपने हाथों को उठा के बोलिए सब मुक जाने रोग पुराने Yes, Jesus. यीशु मसीह हर रोग दूर जाने वाला जे उसके तू नाम को जाने हालेलुया। सब मुक जाने हालेलुया 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 एक बार फिर भरोसा करें सब मुक जाने रोग पुराने कितना बड़ा पुरानी बीमारी हो आज हम परमेश्वर का वचन से सुना है मिस्र का पुराना बीमारी पुराना परेशानी यीशु मसीह चंगा करता है कितना नमा नमा बीमारी आने तो प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है दोनों हाथ उठाकर प्रभु का शुक्रगुजारी करें अगर कोई बीमार हो आत्मिक बीमारी पाप का शक्ति आपके जीवन में हो अपने पाप को छोड़ो यीशु मसीह को ग्रहण करो बोलो प्रभु यीशु मेरा जीवन में या मेरे पापों को क्षमा कर आपके लहू से मुझे धो ले अगर शारीरिक बीमार हो सिर को ऊपर अपना हाथ रखो बीमारी जगह में अपना हाथ रखो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें बीमारी यीशु के नाम से निकल जाओ मुझे मेरा शरीर को चंगा करो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है इस शरीर में शैतान बीमारी मेरे ऊपर तुमको अधिकार नहीं है मुंह खोलकर बोलिए अधिकार इस्तेमाल करिए यीशु के नाम से सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर सांपों का बिच्छों का शैतान का शक्ति को कुचलने के लिए आपने हमको अधिकार दिया आपने दिया अधिकार के साथ प्रभु आत्मिक बीमारी जो पाप का कोड़ा है फोड़ा है यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति का जिंदगी से यीशु मसीह के लहू से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बीमारियां हर प्रकार के दुष्टात्मा का शक्ति परिवारों में हालेलुया पुराना पाप पुराना रोग पुराना श्राप पुराना शैतान पुराना सांप यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा देता हूं हर एक जिस्म से शरीरों से प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाओ परमेश्वर अपने लोग अपने डाले किया है प्रभु सिर से लेकर पाप तक हर एक जिस्म को प्रभु के ईश्वरीय चंगाई रिलीज हो जाए यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से तुम चंगा हो गया है इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया प्रभु आपकी लहू से सबको मोर लगाता हूं प्रभु जी लंबे आयु के साथ पवित्रता के साथ आपकी महिमा के लिए जीने के लिए आपके राज्य के लिए जीने के लिए सबको सहायता कीजिए आर्थिक अनुग्रह शारीरिक बरकत आत्मिक बढ़ोतरी आप दे परिवारों में सुख शांति हमारा देश के अंदर जो
महामारी कोरोना का शक्ति टोटली कमजोर होने के लिए बैक जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मूसा ने कहा, आज तुम देखा वह मिस्र को, तुम दोबारा देखेगा नहीं है। प्रभु जी, हमारे कोरोना बीमारी का नाम हालेलुया दोबारा देखने के लिए, सुनने के लिए मौका ना दे प्रभु। टोटली बीमारी का शक्ति से हम सबको, सारे देश को, सारे प्रभु के लोगों को, सब दुनिया को आप छुड़ा दे परमेश्वर, सबको शिफा दे। आपकी राज्य के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए। आज आजादी का दिन है, सारे हिंदुस्तान भारत देश के अंदर शांति आनंद देकर परमेश्वर अगुवाई कर, सारे महिमा जलाल आपको देता हूं, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह करेंगे, पवित्र आत्मा का सौभागिता सबके साथ, जो व्यक्ति प्रभु का वचन स्वीकार किया उनके साथ, जो ऑफरिंग लेकर प्रभु के हजूर में दुआ कर उनके साथ हर समय, हर वक्त, हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सबको जय मसीह की, सबको बहुत बड़ा आशीष दे। खासतौर से हमारा खोयर को परमेश्वर और अनुग्रह दे। परमेश्वर सबको प्रभु का चंगाई के साथ चलने के लिए हम आशीर्वाद देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मारनाथा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।